So, welcome friends once again for the physics lecture. I hope you are doing your study nicely and not wait for anybody because we have to complete the revision as early as possible. Soon you will be getting the schedule for the exam. So, according to the schedule, we have to plan our studies and do accordingly. So, I hope you will get it done within no time. Okay, you will do that. So without wasting time, we will start. Before that, for a while, let me adjust screen once again. Okay. So this is our old A2 class for your understanding convenience. I am telling you. And on this, now we are starting. Let us check the letters are visible or not. Let me check it. Yes, it is visible. Now we'll go for chapter 4, that is magnetic effect of electric current. Actual name is, what is the actual name? Moving charges and magnetism. So everything we will study that is the magnetic effect of electric current, but the actual name will be moving charges and magnetism. So I will write the name moving charges and magnetism. It will be from your NCERT. So I hope the text is clearly visible. So up till now we have discussed about the flow of charge, that is the current. About the static charge, that is the static electricity. Now somewhere there is a need of understanding and taking the revision about the magnetism. Okay, so we have divided this magnetism into two basic properties, basic things. One is magnetic effect of electric current. Means in this topic we will only learn about the magnetic field created by either straight conductor or the coil, whatever. It may be the solenoid, it may be toroid. Getting my point? And we will try to understand as the distance matters how the magnetic field changes. And then we will study how to consider that coil and that structure like a magnet. You getting my point? Yes or no? Okay. So I hope you will enjoy the lecture. Already, this is a clone of my all lectures. Already I took. So no need to be worried about that. Wait for a while. Let me close the setting. Okay. Because of fan, sometimes the laptop may be moving. So take care of that. Pardon. So all the birds are also singing the songs with us. They are also ready. You will not be getting the voice. I am clearly getting the voice of all the birds which were there before the lockdown with us. So, and I am missing your dog also, which was sitting sometimes in the class, sometimes out of the class, called Jifria. Okay, we are also missing. Let's not make the change of subject. Out. Yes, sorry. There were two dogs.
Okay. So in this way I am trying to call you. Arey, yes. Some I am trying to call you. So it is no time. Come to school. Okay. And we will continue with our education. तो बेटा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, अगर आप करोगे तो। कोरोना इज ओवर, अभी हमारे बाजू से पढ़ाई करो ना, पढ़ाई करो ना, वो कोरोना गया है। तो क्या है बेटा, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देयर इज नो नॉट एट ऑल एनी हर्डल, बट those who are weak in maths, they are not at all studied the math, derivative, integration, something like that. Say they are weak in the geometry, they may find some problem. Otherwise, there is no. Secondly, those who have at least read the topic twice or thrice from the NCR, and those who have read or watched my lectures, they will not face much problem. ये क्यों कह रहा हूँ, बहुत से है बंदे लेक्चर नहीं देखा है अभी तक, मेरे पास व्यूज वगैरह है, सब लिख के रखे हैं। अभी इस लैपटॉप के नीचे एक डायरी रखा है, इसमें सब आपका कच्चा चिट्ठा है, नाम से लिखा है, डेट से लिखा है, इसने आज क्या पूछा, क्या पढ़ाई किया, तो ठीक वो छोड़ दो। अभी इस मैग्नेटिज्म, इसमें हम बार मैग्नेट का स्टडी नॉट एट ऑल नहीं करने वाले, वो आता है क्लासिकल मैग्नेट, तो वो एक अलग ब्रांच है। जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको सिखाया है ना, दैट इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल है वो अलग सा है, बिकॉज वो आता है क्लासिकल मैग्नेटिक थ्योरी। और इस साल आपका क्लासिकल मैग्नेटिक थ्योरी आधा से ज्यादा कट किया, तो डाइपोल वगैरह का डेरिवेशन नहीं आएगा आपको, मैग्नेटिक डाइपोल आपको खाली इसका स्ट्रक्चर वगैरह जो चीज है वही आपको करना है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल मच मोर एम्फसाइज ऑन योर मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक। तो आई होप मैंने सब बता दिया आपको, और थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट के लिए चालू कर दिया क्या क्या है। तो कुछ वादा नहीं है, कुछ आ नहीं रहा है तो मेरे को पूछ सकते हैं। लास्ट में डाउट के लिए रखूंगा 10-15 मिनट, जैसे कल रखा था। जिनको डाउट है वो पर्सनली मेरे को पूछेंगे, मैं रात को जाकर उसका वीडियो करके नहीं तो कुछ करके आपको भेजूँ। वैसे तो डाउट सेक्शन अपना होता है। तो डाउट वेस्टिंग टाइम विल गो फॉर द स्टार्ट। Now, as the magnetic effect is concerned, first of all, you have to understand the concept of magnetic field created due to the conductor. There is a Oersted. Oersted was the scientist, and he found that if the current carrying conductor is there, and if the current is right now there flowing, charge is flowing, then in the vicinity of the conductor, conductor के आजू बाजूला, in the vicinity, we get deflection in the needle, and that is called as the Oersted law. Then what Oersted told, if this is the conductor, दिख रहा है बेटा, सपोज दिस इज द करंट, हाँ, तो यहाँ पे अगर मैंने नीडल रखा तो नीडल गेट्स सम डिफ्लेक्शन, ऐसे भी ऐसे ऐसे। तो ये डिफ्लेक्शन जो है, इसको अगर मैं थीटा बोला तो ये डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल होता है पहला तो अमाउंट ऑफ करंट। अगर करंट ज्यादा है डिफ्लेक्शन विल बी ज्यादा, मोर। इफ द करंट इज लेस deflection will be less. It means that somewhere deflection means magnetic field. Deflection ज़्यादा मतलब magnetic field ज़्यादा. Are you getting my point? Current. Are you getting? Okay. The books I will take it from you. They are not for you, but just for understanding. बाद में देख लो. Deflection बढ़ गया मतलब करंट बढ़ गया, इसलिए डिफ्लेक्शन बढ़ गया, करंट घट गया, डिफ्लेक्शन घट गया। दूसरा, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, अरे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, देयर शुड बी सम पोटेंशियल अप्लाइड, देन ओनली करंट विल फ्लो, देन आल्सो करंट विल इंक्रीज, दैट्स व्हाई डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज। सेकेंडली, डिफ्लेक्शन को भी डायरेक्शन होता है, अरे गेटिंग माय पॉइंट? हाँ,
आइदर ऐसे या ऐसे, ऐसे घूमेगा मतलब वो ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, वो भी डायरेक्शन ऑफ करंट से प्रोपोर्शनल। तो साइंटिस्ट ने क्या समझ लिया, whatever is the current flowing, it is responsible for production of magnetic field in the surrounding area of the conductor. Understood? तो करंट कैसे आता है, ऐसे हवा से नहीं आता है, बारिश जैसे गिरती है वैसे, बारिश में ऐसे नहीं गिरते, क्लाउड होता है, क्लाउड में से आता है। वैसे करंट कैसे होता है, चार्ज फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, हम चार्ज होते हैं, क्योंकि नाम टॉपिक के नाम में क्या है, मूविंग चार्ज। तो जो जो चार्ज मूव होता है वो क्या करता है, इट क्रिएट्स द करंट, और करंट होने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर मैंने ऐसा लिखा, एक अगर इलेक्ट्रॉन है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, आई नो दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो मैं सच सोच लूंगा करंट यहाँ, ऐसे ये हो गया, ये करंट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है। हाँ, तो मैं बता सकता हूँ इसमें भी अभी इसके अक्रॉस इधर उधर मैग्नेटिक फील्ड है। वो किसने बताया, वो बताया बायोट-सेवर्ट। तो आपको सबको मालूम है बायोट-सेवर्ट, बायोट-सेवर्ट उसमें क्या दिया है, V is proportional to I, ये यहाँ पे पता है ना, B मतलब यहाँ पे थीटा था, बताइए V is directly proportional है, तो क्या लेंथ ऑफ द कंडक्टर, sorry for the disturbance, somebody was there. So it is proportional to dl, okay, and it is inversely proportional to क्या, हाँ r स्क्वायर, क्यों बाद में दिखाया गया कैसा है, और आता है क्या आता है, it is directly proportional to sine of the angle between the point and the conductor। मतलब मानो ऐसे, मैंने आपको स्ट्रेट कंडक्टर पहले बताया, नहीं ऐसे ऐसे, ये क्या है मेरा, ये क्या है बेटा, ये क्या है, स्नेक है ना, कंडक्टर, कंडक्टर कंडक्टर ऐसे क्यों दिया, अपन को मालूम है कंडक्टर वायर होती है ना, जैसा देखते हैं वैसा सीखने, एक वायर है कौन सी, तो यहाँ पे दिया है, सब मेरे लेक्चर में, तो बाकी बताने वाला नहीं, एक समरी आपको थोड़ा सा लाइन पे आएंगे, बाकी कुछ गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे और सपोज मानो मेरा पॉइंट यहाँ, और ये पी पॉइंट को क्या करना है, पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक एट पॉइंट पी। ये क्यों बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट है, एक बार आने के बाद फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, मेरे को मालूम, शायद मेरे को भी नहीं मालूम होगा, आपको मालूम होगा। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, तो यहाँ पे ये करंट ऐसे सपोज जा रहा है, हाँ देखो ऐसे, तो ये कुछ तो एंगल करेगा ना इससे, ये हो गया। और यहाँ पे जो ले लेंगे उसको बोलते हैं एलिमेंट, ये जो लेंथ एलिमेंट बताया मैंने, यहाँ पे एक्चुअली मैंने देना चाहिए आपको एल देना चाहिए, लेकिन मैंने दिया नहीं, मैंने डायरेक्ट इसको लिया है, आई हैव टेकन लेंथ एलिमेंट। तो एंगल, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड, ये क्यों लिया है, ये आपको पढ़ने के लिए, मतलब ठीक से समझने के लिए। तो ये r हो गया, ये थीटा हो गया, ये dl बन गया बेटा। अभी I का डायरेक्शन है ना, I तो स्केलर नहीं है, वेक्टर नहीं है, I लेकिन I को डायरेक्शन है, तो वो डायरेक्शन किसको लेने का, dl को लेना।
अगर आया ऐसे जा रहा है तो डीएल वेक्टर बन जाएगा इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर बन गया। आर को बेटा वेक्टर ही है, यस और नो। हाँ, यहाँ पे ये सब चीज को जोड़ के क्या लिख सकते हैं? V is proportional to IDL sin theta, है ना, अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे क्या वगैरह लगाने का तो B कितना आएगा? नॉट अपॉन 4 पाई बराबर ना कांस्टेंट IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर बन गया बेटा। ये हो गया, क्या हो गया बेटा? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड किसका? बोलिए बोलिए बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे? अरे बोलिए, एट पी। बन गया। अभी थोड़ा डायरेक्शन, डायरेक्शन बी अभी आया उन पार्ट। आइडियल साइन थीटा कब लेते हैं? वेक्टर्स में साइन थीटा कब लेते हैं? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। So it's very simple that DL और R के बीच में वो है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन दिखना पड़ता है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। ध्यान में रखने के लिए ये ठीक है, लेकिन समझने के लिए काफी नहीं। दिस इज नॉट काफी, सफिशिएंट। पूरा नहीं है, पूरा कब होगा? अब होगा नॉट अपॉन 4 बाय I into DL cross R कैप। R बार नहीं लिखा मैंने, R वेक्टर नहीं लिखा है, अपॉन R स्क्वायर लिखा है, समझ गए? और अगर मैंने R कैप को यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा तो यहाँ पे बन जाएगा DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। What my point? तो अगर आपने नहीं लिखा है अब तक, आप इसको नोट डाउन करेंगे, लिखा है तो ठीक है। इसके बाद मैं जिम्मेवार नहीं हूँ इस चीज का, सर ने बताया नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कुछ सुनाई नहीं देगा हमको। अरे after 6 months I am getting a duster which is actually doing the work of duster. Oh God, you know why I am getting एक कपड़ा वगैरह लेके ऐसा ऐसा कर 6 महीना काम किया घर का, ऐसा झाड़ू पोछा, वो झाड़ू पोछा ही घर को, ठीक है, अच्छी बात है आंटी टुडे रियली। तो बी बार कैसे लिखेगा? हर्ष do not speak loudly, they must also get do not upon 4 pi I dl cross r वेक्टर r लिखा तो अपॉन r क्यूब, बोथ आर सेम। ये चीजें होती है, ये अपने पास लिखनी होती है। लेकिन अगर पूछा बी वेक्टर प्रोपोर्शनलिटी कैसा है, प्रोपोर्शनलिटी है आर स्क्वायर से, है ना। तो बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे लिखा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। द सेम वे magnetic field is also inversely proportional, so graph will be coming same, getting my point? तो ग्राफ तो सेम। तो ये बन गया अपना बायोट सेवर्ट शक वाली बात। इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? ओके, आई हैव सम वाटर इन sorry for the inconvenience, still I am not habitual for speaking for long time, means I can speak but
some problems are there. Okay, so that was all about the Biot-Savart's law. Getting my point? Now about the direction. Direction दिया है, ये भी दिया है, आएगा कैसे? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है? अभी फटाफट ऑल केसेस, सब्जेक्टिव, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, दिस ए बी सी डी सब एक ही लेक्चर में पूरा करें. आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओके, shall I rub this? पूरा डायरेक्शन बोर्ड पे जितना लिखूंगा इसके बाद कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंट करना है. डायरेक्शन यहाँ तक है ना, भूल जाता है. तो डायरेक्शन फाइंडिंग, बड़ा लिख रहा हूँ आपके लिए बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Especially Daksh Kedekar, if you are watching this lecture, watch it properly because he has asked me some query. If you are having doubt, ये lecture का अभी ये part देखो, बाकी भी है इनका नाम नहीं लिया, एक एक का नाम लेते जाऊंगा जैसे आप डाउट पूछोगे. तो पहले स्ट्रेट कंडक्टर, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? अभी मैं सब्जेक्टिव में नहीं पूछता, एक ही बार बताता हूँ. Imagine the current carrying conductor is held in your right hand such that the thumb is in outside direction and fingers are curled around it. In this case, if the curled fingers, thumb denotes direction of current, then curled fingers denote direction of magnetic field. That is the law. तो अगर ऐसे करंट जा रहा है तो मेरा कर्व फिंगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे. अगर करंट ऐसे जा रहा है आप ऐसे आ रहा है, अगर ये ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे चक्का ऐसे. अगर नीचे है, हाँ अगर नीचे है तो ऐसे ऐसे करके देखो. ओके, करके देखो. तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा अंदर, यहाँ पे बाहर. तो ये हो गया अंदर गोइंग इन, ये फिर से नहीं बताने वाले. और ये कमिंग आउट. क्रॉस माने गोइंग इन, डॉट माने कमिंग आउट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अंदर जा रहा है ना, देखो अंदर जा रहा है मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा और यहाँ पे डॉट रहेगा. वो भी कैसे रहेगा दिखा देते. एक अगर मैंने कंडक्टर लिया तो जैसे जैसे आई विल गो अवे फ्रॉम द कंडक्टर आई विल गेट लाइक दिस ना, आई विल गेट लाइक दिस मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जो है दिख रहा है, दिख रहा है, लूप दिख रहा है. तो छोटे रेडियस वाला लूप का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, उस लूप के ऊपर जो होगा वो, ये आपको ध्यान में. उससे बड़ी रेडियस है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा. कम होते होते देखो बेटा वहां पे कंडक्टर रखा है और मैं गया नीचे आपके शशि की दुकान पे गया और पूछा मैंने मैग्नेटिक फील्ड है क्या? क्या बोले? यहाँ पे तो नहीं है. क्यों? डिस्टेंस मैटर. नजदीक आया, नजदीक आया, मेरे हाथ में कंपास है, आजू बाजू का सब मैग्नेटिक फील्ड जो सब मैं बंद कर दिया, टॉवर वगैरह बंद किया, कुछ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, जो अर्थ का है वही, तो कंपास आएगा. जैसे जैसे मैं नजदीक आऊंगा यहाँ पे आया तो मुझे डिफरेंस. क्यों? नजदीक, इट इज नियर. सो एज यू गो अवे फ्रॉम द मैग्नेट, अवे फ्रॉम द कंडक्टर, ऑफ कोर्स यू विल गेट drastic change in the magnet. Drastic change. It is inversely proportional. Like you have to give. डिस्टेंस ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कम. ज्यादा कम मतलब बहुत कम है. थोड़ा चेंज करोगे मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम हो जाएगा. अरे ऐसे कैसे होगा? मैंने तो इतना ही, अरे वो आर स्क्वायर है ना, पर वो नीचे है, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा. तो जितना कंडक्टर के नजदीक, उल्टा जितना नजदीक जाओगे बढ़ता जाएगा. तो वैसे आपका ठीक है. तो यहाँ पे कंडक्टर का डिरेक्शन है. तो अभी मालूम है, अभी ऐसे करंट लिया
तो ऐसे क्या मतलब नीचे क्रॉस, अरे ऐसा नो, ऊपर डॉट, हाँ कैसे भी करो, ऐसे लिया, आप ही बोलिए अभी, ऐसे लिया मतलब नीचे जाएगा है ना, तो नीचे डॉट क्रॉस, ऊपर, ये तो हो गया, समझ में आया। स्ट्रेट कंडक्टर लिया, सब केस आपकी बुक में होनी चाहिए, यहाँ पे नीचे क्रॉस, I'm going like this ना, where my hand is going down, हाँ right, left not left, हाँ जिस काम के लिए जिस हैंड का यूज करना है वो आपको करना है। इफ यू आर राइटी देन खाओगे राइट हैंड से, इफ यू आर लेफ्टी तो खाओगे लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड आएगा ही नहीं। हाँ लेकिन यहाँ पे अगर आप लेफ्टी भी हो तो आपको राइट हैंड यूज करना। ये कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट ऑफ एनी नथिंग, जस्ट राइट हैंड आपको यूज करना। वो उनका चिन्ह भी राइट हैंड का होता है ना, हाँ वो याद रखने के लिए कनेक्ट करके दिया, आई एम नॉट रिलेटेड विद एनी, हाँ नॉट एट ऑल, बोलना पड़ता है बेटा, पुलिस आएगा। ओके ये तो स्ट्रेट समझ लो, ठीक सर। ऐसे है तो अभी ऐसे अगर मैंने क्लास है व्हाट विल बी द डायरेक्शन, कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं है, तो मोड़ लिया है, ठीक है यहाँ से अंदर ही जाएगा, यहाँ से क्रॉस ही आएगा, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाए, मतलब ऐसा 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 है ना, अंदर ही जाए, यहाँ पे डॉट, तो एक चीज यहाँ तक सब, अभी बोलिए सर ये तो ठीक है, अभी ये कैसे करोगे सर आप, ये मैंने ऐसे दिया, वही पे भी अपना राइट हैंड रूल भी करना है, तो आई कैसे बन गया, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, हाँ अभी मैग्नेटिक फील्ड बीचों बीचों, हाँ इनसाइड एट द सेंटर, इनसाइड एट द सेंटर, और कैसे होगा, अभी यही हाथ यूज करना है, वहां पे ऐसे ऐसे करते थे ना सब, यहाँ पे रखने का ऐसा अंगूठा, तब सब जगह अंगूठा ऐसा रखना है या ऐसा लेना है, ये ऐसे जा रहा है ना, मतलब वो पूरा अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा, तो ये हो गया आपका क्रॉस, इसके उल्टा अगर आया, अरे सॉरी, तो आई क्या बन गया, ए सी डब्ल्यू, डी क्या बन गया, समझ गया बेटा, इसके आगे कुछ नहीं आता है। और आगे के दो केस आपको बता के रखता हूँ, जो आपको आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उल्टा हो गया, उल्टा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर आपके सामने है और करंट इज गोइंग आउट, अगर करंट ऐसे तो कैसे हो जाएगा बेटा, अंदर में करंट है मतलब ऐसे कंडक्टर है और करंट बाहर की तरफ आ रहा है, कुछ नहीं है ये ऐसे आ रहा है, मतलब तो ऐसे घुमाऊं एंटी क्लॉकवाइज, तो बी कैसे बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, अरे गेटिंग माय पॉइंट, ज्यादा टाइम पास नहीं करो, बी विल बी ए सी डब्ल्यू, आई विल बी कमिंग आउट, और ये क्रॉस है तो उल्टा हो जाएगा सी डब्ल्यू, हाँ तो ये बन जाएगा आपका बी क्लॉकवाइज। एक ही ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये सब केस में ये आता है, होता है, दिखता नहीं, अरे सर यहाँ भी तो होता ही है, अगर आपने इस कंडक्टर के ऊपर आप बैठ गए ऐसा, और यहाँ से देखिए क्या दिखेगा, करंट अगर नीचे जा रहा है ऐसा तो आपको दिखेगा ऐसे, अगर ऊपर आ रहा है दिखेगा, दिखेगा मतलब दिखेगा नहीं, होगा, दैट विल बी, गॉट माय पॉइंट, henceforth I will not make any statement about the direction of magnetic field, you have to choose, समझ गए, ओके shall we go further, अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट टू स्टफ के लिए आपको क्या करना है एग्जाम के लिए, फॉर एग्जाम राइट डाउन इन फॉर पीपल हु आर वाचिंग ऑनलाइन, यू मे नोट डाउन ऑल्सो, for the exam you have to be ready with Biot-Savart's law, statement, diagram, this all direction, ये रेडी से रखना होगा, जैसे चाहिए वैसा डालने का, नमक जैसे डालते कितना जितना चाहिए कितना चाहिए, थोड़ा चाहिए,
अदरक कितना चाहिए चाय में, थोड़ा उतना उतना उसका यूज कर। नहीं नमक नहीं होगा तो आपको फीका दिखा, हाँ नमकीन थोड़ा चाहिए वैसे ही। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बट यू हैव टू यूज इट अकॉर्डिंग, नॉट डायरेक्ट। सेकेंडली एप्लीकेशन करके इसका हम क्या क्या निकालते हैं, करंट कैरिंग कॉइल यस और नो एट एनी पॉइंट। आपको दिखाने के लिए मेरा व्हाट्सएप का वीडियो, सॉरी यूट्यूब का वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने पूरा आपको करके दिखाया। यहाँ पे आपको खाली करंट कैरिंग कॉइल लिख देता हूँ मैं। तो ये 100% आता है करंट कैरिंग कॉइल। क्या क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे बेटा, along एक्सिस, नहीं तो और एट सेंटर, बस दो केस। एक तो एक्सिस पे कौन से भी पॉइंट पे, यहाँ पे एक्सिस का कंसेप्ट अलग है, मैंने ऐसे रखा है उसको, ऐसे रखा है, दिख रहा है बेटा सबको। तो ये आप इसका सेंटर है, ये एक्सिस है, क्या आएगा उसका रेडियस आर, रेडियस और नो आर लिखते हैं तो कोई ए भी लिखता है ना, और ये डिस्टेंस दिखा आर लिखा। सपोज ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है ना, तो आपको डेरिवेशन करके नहीं दिखा, उसमें से क्या करेंगे, करंट सपोज ऐसे जाए, है ना गोइंग फास्ट, समझते हैं, करंट सपोज ऐसे जाए, अभी क्या हो जाएगा बेटा, करंट अगर ऐसे घूमने लगा तो इस पॉइंट को मैं मेरा एलिमेंट कैसे ले लूंगा, ऐसे छोटे वाले एलिमेंट ले लूंगा, ये सर दिस विल प्रोवाइड डीए, डायरेक्शन कैसे लेगा वैसे वहां पर। तो ये डिस्टेंस कौन सा ले लेंगे, हां डिस्टेंस ये ले लेंगे, यहां से आके यहां, एंगल कौन सा लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, नीचे वाला भी लेते हैं लेकिन वो ज्योमेट्री यूज करके बाद में लेते हैं। अरे गेटिंग माय पॉइंट, ये समझने को आपको समझ के लेना चाहिए, तो ये बन गया आपका एंगल, जितना उसने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे अभी करंट कैसे जा रहा है, करंट, हाँ सॉरी वेरी सॉरी, परवा क्यों गया, परवा क्या कितने क्या tomorrow 1 to 5:40 school is there, now no holidays, nobody will ask about. Okay, what was your point, I was giving you direction. So direction can be found by magnitude direction, right hand rule or right rule. Okay, now I will recall you. When the conductor was like this, current was like this, so magnetic field was going in. Yes, sir. If the current is like this, suppose, then it will be coming out. Getting my point? Now, what we will do here? Then, here I have explained. Here dB comes here, like that. Not directly here. There is a change in direction. One comes here. Suppose mirror element I will take this and this. Then for this element, this will be the distance and it will be exactly opposite. So that whatever the angles are there, they will be same. So this will be, now suppose if I consider this to be say phi, तो ये बन जाएगा dB cos phi, ये बन जाएगा dB sin phi,
नीचे वाले का भी डीबी साइन फाइव बन जाएगा। डीबी लिखते हैं ना, बीएल है ना, तो डीबी लिखेंगे छोटा छोटा, वो लिखा है ना बी वहां पे, वो भी डीबी है, बाद में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये दो हो जाएगा और ये दोनों का मिला के 2 dB cos हो जाएगा। हाँ, तो अगर 2 dB cos ले जाओ तो मतलब ऑलरेडी इसको लिया है आपने, ऑलरेडी इसको लिया है। सो व्हेन यू इंटीग्रेट यू नॉट टेक टोटल, यू नॉट टेक 2 पाया इंटिग्रेशन, याचं इंटिग्रेशन काय ना, सर्कल म्हटलं 2 पाया एल 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 इक्वल टू 2 पाया घेता ना, पण आपण ऑलरेडी ह्या डीएल ला याचा मिरर डीएल घेतला ना, भाव घेतला त्याचा, फॅमिली कंप्लीट केली म्हणजे अर्धच बघायला भेटतात, म्हणजे अर्ध किती आला पाय आर. सो ॲट दॅट टाइम डीएल च्या ऐवजी काय देतात पाय, दोन्ही आन्सर सेम येणार, दोन्ही आन्सर सेम येणार. जर तुम्ही दोन घेतले असतील then what you have to take pi r you have to take. If you have not taken two, only one dB you have taken, then it will be dB cos phi. Now it is 2 dB cos phi na, so you are taking 2 dB cos phi, then you integrate and then you take pi r. If you are using only dB cos phi, means only one component, sign will vanish, that no need to do. But this, if it is dB cos phi, then take 2 pi r after the integration. L is equal to 2 pi. And if it is 2 dB cos phi, then take L is equal to pi. Are you getting some point? So after that, you will be getting your equation and all, r square plus a square divided by something like that and all. So these two derivations are important. Today note down, they must be there in your notebook. At this diagram, some sort of formulation, and lastly the equation. What will come? Problems are being asked on this also. Very good. Okay. Now, the application of this. What will be the application of this? Do you know what will be the application of this? Yes. Do you know what will be the application of this? Center of the coil. First, center of the coil. And for straight conductor, there are 5 applications: finite, semi-infinite, that also will be. Are you getting my point? In that case, so for problem solving, you will be having magnetic field, wait. So you will be finding magnetic field at the axis, or sorry, at the center. Okay. So what is that formula? Do you have that? It will be there at center. V naught I upon 2 pi है ना? अरे सर नो, विसरले बाबू, झालं? और V naught upon 4 pi 2 I upon a. अरे सर, बरोबर आहे का? विसरला असेल ना लिहिलेला? Today you go and see whether you have written that or not. Okay? Simple. Understood everybody? So now we will go for understanding 4 important cases. I know that formula you may be knowing. What is that? Whatever we learned right now, that was for each and every type of conductor. But now we will limit our discussion for only straight line, and this is purely for competitive. This is purely coming for competitive. Or for your CET also it will be coming. Or for board, if 3-mark question is there, they will ask for 2 marks, A, B, C, like that. For 1 mark, 2 mark, they may ask. Simpler. So, straight conductor will go. First of all,
लेट मी एक्सप्लेन यू द टाइप्स ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। ये पहले लिखा, इसको बोलते हैं, ऐसा अगर लिखा इसको क्या बोलेंगे बेटा? आपको दिखने के लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखता है, तो ये ऐसा लाइन लिखा मैंने और यहाँ पे डॉट किया और यहाँ पे डॉट, ये बन जाएगा मेरा इनफाइनाइट। क्या बन गया? इनफाइनाइट बन गया। मतलब दोनों बॉडी से बहुत डिस्टेंस लंबा है, लॉन्ग कंडक्टर, स्ट्रेट है, स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर कैन बी कॉल्ड इनफाइनाइट। सेकंड वन कैसा बन गया? ये बन गया फाइनाइट, बराबर, क्योंकि इसको डॉट नहीं लिखा, मतलब इतना ही है, ज्यादा लंबा नहीं। एक ऐसा भी होता है नीचे से डॉट नहीं, ऊपर से डॉट, नहीं तो ऊपर से डॉट नहीं है, नीचे डॉट, इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो अगर ऐसा है तो क्या करने का है, तो दिखाएं। तो फाइनाइट के लिए लिख लेते हैं और उसका केस का आगे हम करके, आपके पास शायद फॉर्मूला होगा उसका, हमने पूरा लेक्चर पूरा बनाया है, लेक्चर वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, अगर आपने देखा हो बेटर है ना। तो स्ट्रेट फाइनाइट कंडक्टर, पहले क्या लेते हैं? फाइनाइट। और सपोज मैंने इसके बीचों बीच ऐसे एक लाइन बनाया और यहाँ पे पॉइंट पी, तो आपको मालूम है अगर करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इन, वो तो मालूम है। अरे इसको तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए इसको मैं क्या करता हूँ, जोड़ लेता हूँ। ये बन गया अल्फा, ये बन गया बीटा, वेयर इज बीटा एंड दिस इज बीटा, बीटा आई थिंक इज इंडीड बैच। ये कितना बन गया? डी बन गया, डी लिखा था, डी आर लिखा था, डी लिखा, ये डिस्टेंस डी, ये आर ले लो। हाँ बोलिए, फॉर्मूला बोलिए, जनरल फॉर्मूला, नाउ दूसरा कैसे लिखते हैं? जनरल फॉर्मूला बेटा है ना बुक में? हाँ, P इक्वल्स नॉट आई 4 पाई है ना, या 2 पाई डी, यू नॉट 2 आई, आगे भी है वो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा साइन, बराबर है, सब लिख किया है, लेकिन नोटबुक पे सेम है। ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखने का, बाकी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया तो चलो, खाली एक फॉर्मूला ध्यान में रखो। अभी क्या करने का है? देखो, ये साइन अल्फा साइन बीटा, अगर मैंने नंबर वन, अभी केस सब नहीं कर रहा हूँ, एक करके दो, अगर मैंने इनफाइनाइट लिया तो बेटा स्ट्रेस व्हाट विल हैपन, ये जो है ना, ये ऐसा 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 करके ऊपर जाएगा, बराबर, तो अल्फा 90 बन जाएगा, बीटा भी 90 बन जाएगा, देयर योर if the conductor is infinite, alpha will be 1, alpha will be 90, beta will be 90, implies sin alpha will be 1, sin 90, sin beta will also be 1, 1 plus 1, 2 हो जाएगा, 2 काटेगा 4 को, अरे सॉल्व करो, ये खाली बन जाएगा नॉट r अपॉन 2 पाई d, कौन से भी इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए ट्रू है। सेमी लिया तो सेमी लिया, सेमी इनफाइनाइट, एक जीरो एक नाइन, और अगर ऐसा केस दिया कि यहाँ पे फाइनाइट, यहाँ पे फाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट,
देखो क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? एक बार इसको अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख के लीजिए, बाद में इसको पूरा कर दीजिए। तो फॉर्मूला डायग्राम जो मैं बोला वो भी नहीं है तो फिर से अभी आपको पहले ही दिखा हूँ, लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट ये करने के बाद हर एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। सीआरबी प्लस का वाला बोलने के लिए ठीक ऐसे लिया। एक एक केस बताता हूँ, आप बोलिए। ये डी लिया, ये अगर फाइनाइट है तो क्या हो जाएगा? अल्फा तो नहीं है, अल्फा लेगा 0, साइन अल्फा कितना हो जाएगा 0, बीटा कितना है? बीटा आएगा ना बेटा? नहीं 90 कैसे आएगा? कितने बता? हाँ बीटा, तो बीटा नॉट इक्वल टू 0, फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, बड़ा दिख रहा है लेकिन बड़ा टैम्पर करेंगे बच्चों सर, दिखता है म्यू नॉट I upon 4 pi d into bracket sin 0 0 plus sin beta बस। So mu naught I sin beta upon 4 pi d, that's all. Got my point? तो उल्टा किया, उल्टा कैसे करेंगे सर? ऊपर है ना, ऊपर कुछ नहीं है, फाइनाइट है, नीचे ऐसा इसको किया ठीक है बेटा। अल्फा कितना बन जाएगा? नॉन जीरो, अरे सॉल्व लो, यहाँ पे बीटा नॉट इक्वल टू 0, बीटा कितना बन जाएगा? बीटा 0 बन जाएगा। तो यही फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस 0, अरे सॉल्व लो। तो ये म्यू नॉट आई साइन बीटा अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई साइन अल्फा अपॉन 4 पाई, ये हो गया एक वैल्यू फाइनल, इसको बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट में ऐसे भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने ये फाइनाइट दिया, कंडक्टर फाइनाइट दिया, लेकिन यहां से नहीं देते तो ऊपर वाला इनफाइनाइट बन सकता है ना? तो अभी क्या बन जाएगा? ऊपर डॉट है, अगर ऊपर डॉट है तो ऊपर तो अल्फा में 90 बन जाएगा, यहाँ से चालू किया, नीचे तो कंडक्टर नहीं है, बीटा बन जाएगा 0, तो कितना बन जाएगा? b इज इक्वल टू हाँ म्यू नॉट r अपॉन 4 पाई d साइन अल्फा कितना? साइन 91 प्लस 0, तो यहाँ पे बनेगा म्यू नॉट r अपॉन 4 पाई d। तो अगर कंडक्टर फाइनाइट है और उसकी एक साइड से ले रहे हो तो म्यू नॉट r sin थीटा अपॉन 4 पाई d, म्यू नॉट r sin अल्फा अपॉन 4 पाई d। अगर कंडक्टर इनफाइनाइट है एक वजह से, इसको भी सेमी इनफाइनाइट है, एक होता है सेमी फाइनाइट और एक सेमी इनफाइनाइट, बट वो टीचिंग करते समय ऐसे भी देते हैं, ये एक्चुअली सेमी एक वजह से इनफाइनाइट और नीचे से ओके। अगर ऐसे नहीं किया, यदि इनफाइनाइट है बराबर है सर, इसका उल्टा लिया तो भी क्या हो जाएगा? इतना ही आएगा, हालांकि ये डायरेक्शन इसका उल्टा, ये ऊपर जाएगा और नीचे वो इनफाइनाइट है। और एक चीज है, और एक बात, अगर ऐसे इसको ऐसे कैसे ऊपर से इनफाइनाइट नीचे से फाइनाइट और बीच में कहीं से भी, तो ये तो डिस्टेंस आएगा, कितना आएगा? बीटा नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज इक्वल टू 90। हाँ तो वहां पे मैंने देखा है यही तो केस है, ये कंटिन्यू हो गया, लेकिन उसमें आपने इसको 0 लिया तो भी वो नॉट इक्वल टू 0, हाँ उल्टा हो जाएगा, इसके उल्टा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? नॉट I upon 4 pi d sin alpha sin 1 plus यहाँ पे क्या था? sin beta, यहाँ पे तो अभी बच्चा बोलेगा सर मैं कागज के ऊपर फॉर्मूला लिखता हूँ, केस लिखता हूँ, फॉर्मूला रट लेता हूँ। रट लो बेटा, एग्जाम में याद आने वाला नहीं है, जो बोलते हो आप रटते नहीं हो, वो तो ऐसे ही हाँ फेंक देते हो। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसको रटो मत बेटा। हाँ समझ गए? हाँ हाँ रटने का नहीं है,
पाठ करायचं नाहीये, समजलंय का? मराठी बांधवांचे त्यांना सर मराठी बोला, पाठ करायचं काय करायचं? फॉर्म्युला कुठला पाहिजे? एकच पाठ कुठला? म्यू नॉट आय अपॉन 4πd वॉट एव्हर. आता 4πd 2πd मी अजून त्यात दुसरं नाही, तुमच्याकडे आहे सोर्स म्हणजे मीच दिलं तो साईन लागणार, साईन भेटेल लक्षात. आणि जर इन्फायनाईट गेला 90 करून टाकायचा, जर तिथूनच चालू केला तर त्याला 0 करू. दिस इज द all chapter moving charges and mechanics. Nothing will come outside subject. The here objective. After this, there are some points which are, I think, force acting on the conductor. Yes or no? Solenoid, toroid, uh, solenoid as a bar magnet as a solenoid, something like that. 2-3 formulae are there. So for this chapter, if you want for subjective, then solenoid equation and derivation, toroid equation, derivation, getting my point. Biot law equation, derivation. This all some crispy problems, some small questions. This you have to keep in mind. Now we will come for the unit of magnetic field. What is the unit of magnetic field? There are many units. Tesla, Gauss, and Morse, है ना? So you have to emphasize more on where to use which unit, है ना? This you have understood, everybody? So without wasting time, I will give you the idea about magnetic flux. Okay, because that torque acting on the magnetic dipole and all, that is cut. Okay, solenoid toroid tomorrow I will take. Tomorrow there is a lecture, so solenoid toroid I will take tomorrow. There is no problem. Today we will see what is magnetic flux. क्यों बता रहा हूँ? एकदम सिंपल है. Just like electric flux. Electric flux everybody know, सगळ्यांना माहिती आहे. काय असते electric flux? बोला. अरे फ्लक्स म्हणजे काय? ठीक आहे. पहिले विचारतो. फर्स्ट आय विल आस्क व्हॉट इज मीन बाय फील्ड लाईन? कुठली असेल? इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन सांगा. path along which a free unit positive charge moves. बरोबर? टेस्ट चार्जचा कन्सेप्ट. करेक्ट. मग काय प्रॉब्लेम आहे? Whatever charge you are taking, if the field line is going out, it means that it is repelling my positive charge. आता पॉझिटिव्ह कोण रिपेल करणार? पॉझिटिव्ह. दॅट्स वाय दिस इज पॉझिटिव्ह. आणि कोणी सांगितलंय? लाईनने सांगितलं. सो त्या जर चार्जला मी इथे आणून ठेवला, that will not sit. Why? This will repel. मग कसं रिपेल करेल? असं असं करेल, असं किती होईल? इथे इथे बसला की त्याला इथनं तो straight way. So where it will go, that hypothetical line will be my field line, electric. Just same. तिथे चार्ज होता पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, इथे आपण घ्यायची पोल स्ट्रेट, प्लस एन मायनस एन. नॉर्थ पोलला प्लस एन, साऊथ पोलला मायनस. गेटिंग माय पॉइंट? So this will come in classical magnetism, but त्याच्यामध्ये पण दोन आहेत. One is classical magnet and another is whatever we will study that tomorrow, that will be solenoid. So once we will consider, हे सांगायचं, once we will consider the current carrying conductor, suppose if it is like that, कसा करंट कसं झालाय? असा झाला. आता असं करायचं ना, हा असा. बघा लक्ष द्या, तुमच्याकडे पाठ केली असाच चाललाय. हा म्हणजे मी असा फिरवतो. भांडी कशी घासणार आपण? इकडे काय ना नॉर्थ, इकडे सो असं जर घेतलं, इकडे नॉर्थ आहे ना, इकडे. So you may write in your notebook if you are taking the current loop. So for current loop, ज्यांना लक्षात राहते तरी loop घ्या. For current loop, thumb will denote the direction of north pole. Thumb will be the north pole.
कुठेही करू नका कसंही घ्या कंडक्टर असा आहे कंडक्टर ओके म्हणजे इकडे कोण आहे कारण थंब म्हणजे पॉईंट झाला ॲरो झाला सो इट विल पॉईंट आणि मॅग्नेटिक फील्ड दिसणार कसं रे हाऊ इट विल लुक लाईक इट विल नॉट लुक लाईक दिस इट विल लुक लाईक दिस they will go out and here they will come in getting my point okay and here like that here like this is the way in which it can be understood आ रहे ध्यान देखो देखो बेटा is that clear to you so this is the way in which it can be done okay magnetic dipole moment and all everything we will take it tomorrow there is no problem and today we shall stop here because it's already 4:36 I think 40 minutes over 4 minutes are in students are there it must be of 1 hour it's okay no problem so in this way we have started to learn the magnetic moving charges and magnetism some important points I have explained today tomorrow also I will record the lecture so there is no problem sky is the limit for the study so till tomorrow stay home stay safe and stay tuned with physics thanks a lot thank you bye bye god bless you